Okay, so today we will start with current electricity. Let us directly go ahead and solve some questions. So in this question, आपको बोला है temperature coefficient of resistance of a wire is 0.00125 per degree Celsius. At 300 Kelvin, its resistance is 1 ohm. The temperature at which the resistance becomes 2 ohm is. तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए what is the formula of resistance at some higher temperature. RT is equal to resistance at some reference temperature. Reference हम लोग normally 0 डिग्री लेते हैं. 1 plus alpha delta T. और रेफरेंस टेम्परेचर 0 लेने का रीजन ये है कि व्हेन यू राइट डाउन डेल्टा T, दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल, रेफरेंस टेम्परेचर इन द इनिशियल टेम्परेचर एंड दैट इज 0. तो बेसिकली T माइनस 0. तो रेफरेंस टेम्परेचर को 0 डिग्री लेने के पीछे रीजन इज दैट basically delta T will become T. So the formula will become RT equal to R0 1 plus alpha T. अब आपको बोला है अल्फा की वैल्यू आपको दी है 0.00125. Then at 300 Kelvin the resistance is 1 ohm. तो रेजिस्टेंस अभी आपके पास दो वैल्यूज है रेजिस्टेंस के और आपको क्या करना है सेकेंड वैल्यू के लिए टेम्परेचर फाइंड करना है. मतलब यू कैन राइट डाउन this as R1 equal to R0 1 plus alpha T1. Similarly, you will be writing down the same formula for R2. So you will be having same formula for R2 as well. 1 plus alpha T2. यहाँ पे R2 आएगा. Then you will divide these two equations. जब आप डिवाइड करोगे तो R1 by R2 equal to R0 will cancel out. 1 plus alpha T1 upon 1 plus alpha T2. R1 आपको 1 ओम बोला है और R2 आपको 2 ओम बोला है 1 by 2. ओके 1 plus T1 टेम्परेचर is 300 Kelvin, 300 अल्फा अपॉन 1 plus T2 टेम्परेचर फाइंड करना है आपको, राइट. So इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, you will get 1 plus alpha T2 equal to 2 plus 300 into 2, that is 600 alpha, right? Correct? You will get a wrong answer here for a simple reason. Kelvin, but this is per degree Celsius. So that is why you have to convert this also in degree Celsius. Okay, so that is a reason of getting wrong answer. तो इसको अगर आपने 27 लिखा था तो ये आ जाएगा 54, right? So you will write this as alpha T2 minus 54 alpha equal to 1. Then you can take out alpha common. T2 minus 54 equal to 1. So T2 minus 54 equal to 1 by alpha. 1 by alpha. T2 minus 54, 1 by alpha, 0.00125. Okay? Now, you must learn how to simplify your calculations. So T2 minus 54. सीधा सीधा काम करो, ये 10 पावर माइनस 5 को ऊपर 10 पावर प्लस 5 लिखो, उस 10 पावर प्लस 5 को 100 इंटू 10 पावर 3 लिखो अपॉन 125. या तो ऐसा करो 10 पावर 3 is 1000. It is 1000 because this is 1 जा, this is 8 जा. 125 into 8 is 1000. Therefore, you will have T2 equal to 800 plus 54, that is 854 degree Celsius. तो ये 854 डिग्री सेल्सियस मतलब 854 plus 273 Kelvin. ओके, सो व्हाटएवर यू गेट, लास्ट में 7 आना चाहिए, 1100 समथिंग, बट आखिरी में 7. ऑप्शन नंबर डी. ओके, so this is the formula that you need to know. How does resistance vary with temperature? Okay, next question. This is a joke. Drift velocity Vd varies with intensity of electric field as per the relation.
आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी पहले तो पता होना चाहिए. यू शुड नो व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी. नो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब पूछ रहा हूं मैं. दैट इज यू हैव अ कंडक्टर and you know inside a conductor you have positive ions, and you know inside a conductor you have free electrons. Free electrons are moving randomly, okay, in absence of any external battery. हमने यहाँ पे एक्सटर्नल बैटरी कनेक्ट नहीं की, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शन, जितने इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स दे विल क्रॉस दिस सरफेस, क्योंकि रैंडम मोशन है, मतलब नेट करंट इज जीरो. वेल बाय द वे, इस केस में भी इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी है, बट देन व्हेन यू कनेक्ट अ बैटरी टू दिस, all the electrons start drifting towards the positive terminal of the battery. So the motion of electrons in presence of external battery मतलब वोल्टेज मतलब पता है आपको. अगर ये लेंथ L है, you should know electric field is V by L. जितना ज्यादा वोल्टेज रहेगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, उतना ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी रहेगा. तो ये सिंपल क्वेश्चन, VD is proportional to E. Done. The more potential difference you apply, the more is the electric field and the more is the drift velocity. Next question. A wire of length 5 meter and radius 1 mm has a resistance of 1 ohm. एक वायर है, लेंथ 5 मीटर है, रेडियस आपको दिया है 1 mm और उसका रेजिस्टेंस है 1 ohm. What length of the wire of the same material, important है, at the same temperature and of radius 2 mm will also have a resistance of 1 ohm. देखो, resistance R is equal to rho L by A. Rho L by A is pi R square. करेक्ट. क्या बोला है, एक वायर है जिसका लेंथ 5 मीटर रेडियस 1 mm है, उसका रेजिस्टेंस 1 ohm है. व्हाट लेंथ ऑफ वायर ऑफ द सेम मटेरियल, मतलब दिस बिकम्स कांस्टेंट, राइट, एट द सेम टेम्परेचर ऑफ रेडियस 2 will also have the same resistance, मतलब R itself is constant. तो R equal to rho L by pi R square में ये भी constant, ये भी constant, ये भी constant, मतलब length is proportional to R square, मतलब L2 by L1 will be equal to R2 by R1 का square, right? तो L2 by L1, L2 फाइंड करना है, R1 is 1, R2 is 2, और mm doesn't matter because you're taking ratio. तो 2 by 1 का square times of L1 मतलब 4 times of L1. What is L1? 5. तो 4 times of 5 is 20. Do you see answer as 20? Option number D. So that's how you are supposed to solve this particular question. Okay. Next question. Dimensions of a block are 1 centimeter cross 1 centimeter cross 100 centimeter. If specific resistance of its material is 3 into 10 power minus 7 ohm meter, then the resistance between the opposite rectangular faces is. The thing is, पहले क्वेश्चन समझ लो. क्वेश्चन समझे बिना इस you will not be able to solve this. It's an easy question. आपके पास एक ब्लॉक है जिसके डायमेंशंस आपको दिए हैं, एंड डेफिनेटली फ्रॉम द गिवन डेटा ऑब्वियसली यू अंडरस्टैंड दैट इट इज अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक विथ स्क्वायर साइड्स ऑफ कोर्स. तो यहाँ पे ये एक फेस स्क्वायर है, देन यू विल हैव लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस. ओके, तो ये ऐसा आएगा. Okay, then you have a block like this. ऐसा एक ब्लॉक है आपके पास. Then
right? Do you remember when you find out resistance, you say rho L by A? L कौन सा? अगर आप फ्रंट और बैक मतलब फेस नंबर 2 और फेस नंबर 1 में रेजिस्टेंस फाइंड कर रहे हो तो ये लेंथ लोगे विच इज नथिंग बट 100 सेंटीमीटर, राइट? लेंथ किसका? जिस दो एंड्स के बीच आप फाइंड कर रहे हो उन दोनों एंड्स का डिस्टेंस, दैट इज 100 सेंटीमीटर। एरिया किसका? इस फेस का, दैट इज 1 सेंटीमीटर क्रॉस 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सिंपल क्वेश्चन था। रेजिस्टिविटी आपको दिया है कितना है? 3 इंटू 10 पावर माइनस 7। लेंथ आपको 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर लेना है। एरिया आपको 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लेना है क्योंकि स्क्वायर फेस है, राइट? तो यू शुड नो वायर का रेजिस्टेंस जब आप फाइंड करते हो, अगर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है तो एरिया आप कभी भी सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का लेते हो because you find resistance between this end and this end. So similarly in this question also. So now what is area? 1 centimeter square. What is 1 centimeter square? 10 power minus 4 meter square. ऊपर जाएगा तो प्लस होगा तो 3 into 10 power minus 3 ohm will be the answer. Do you see something like this? Option number D. Okay, right? Next question. Good. I am going to tell you a trick here. The current in the adjoining circuit will be, आपको पता है करंट बेसिकली V इक्वल टू आई आर, तो I इक्वल टू V बाई आर। मतलब पहले आप इक्विवेलेंट निकालो। तो बाय द वे मैं पहले सॉल्व करके बताता हूँ, देन आई टेल यू द ट्रिक। यू ऑलवेज से दिस पॉइंट इज नॉट अ जंक्शन पॉइंट। ये पॉइंट जो जंक्शन में ही है तो ये आ गया दोनों सीरीज में, मतलब ये आ गया 60 और 30 आपके पास है पैरेलल में। तो दिस 60 एंड 30 दे आर इन पैरेलल। तो पैरेलल में आपको पता है R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, 30 प्लस 60, मतलब दैट इज 30 इंटू 60 बाय 90, मतलब 1 जा 3 जा 1 जा 20 जा, तो 20 ओम इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। नाउ we are supposed to find out current. Current is V by R equivalent. V भी कितना दिया है? 2. What is 2 by 20? 1 by 10. 1 by 10. Do you see option number C? Correct? So let me give you a trick here. The thing is, अगर आपके पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के किसी भी दो फेसेस, दो वर्टाइसेस के अक्रॉस आपको अगर इक्विवेलेंट निकालना है, अगर ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, तो याद रखना ऊपर के दो सीरीज में, नीचे का पैरेलल में। सीरीज कॉम्बिनेशन इज इन पैरेलल विद R3, तो मतलब R इक्विवेलेंट कह सकते हो। R इक्विवेलेंट नहीं, यू हैव टू थिंक अबाउट इट। ध्यान दो यहाँ पे ध्यान दो, ये दोनों सीरीज में थे, इन दोनों का इक्विवेलेंट इसके साथ पैरेलल में था, मतलब सीरीज में थे, मतलब R1 प्लस R2 था इंटू R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। क्यों इजी होता है? क्योंकि R1 प्लस R2 प्लस R3 90 आने ही वाला, राइट? R1 प्लस R2 60 इंटू R3 30, 60 इंटू 30 बाई 90, R1 प्लस R2 इंटू R3, R1 प्लस R2 क्योंकि सीरीज में थे, इंटू R3 बाय R1 प्लस R2 प्लस R3 क्योंकि R3 और R1 प्लस R2 का सीरीज कॉम्बिनेशन था पैरेलल में, राइट? तो जस्ट बाय लुकिंग एट द वैल्यूज यू विल से 30 प्लस 30 60 इंटू 30 अपॉन 90, 30 प्लस 30 60 इंटू 30 बाय 90। गुड, वही है यहाँ पे। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 resistors of 2 ohm are connected in a triangular shape. Resistance between any two vertices कितने हैं? 2 प्लस 2 4 इंटू 2 8 अपॉन 6 4/3 खत्म, right? That's why I told you, you need to do something like this. Make tricks for yourself.
Okay, then next question. Equivalent resistance between A and B will be, अभी ये भी जोक है, ये दोनों 6, ये दोनों 6 और 6 पैरेलल में मतलब 3, तो ये पूरा का पूरा टोटल 3, 3 3 और 3 मतलब 9, मतलब ऊपर का ये पूरा आपको दे रहा है 9, 9 और ये नीचे का जो था ये था 6, 9 और 6 पैरेलल में, मतलब आप लिख सकते हो इक्विवेलेंट बिटवीन ए बी 9 और 6, 9 into 6 upon 9 plus 6, 15. This is 2 this is 5 right? 18 by 5, that is 36 by 10, that is 3.6. Option number D. Right? जिनको नहीं समझा I can repeat. Is it clear? Good. Then next question. Again a interesting and easy question. तो इस क्वेश्चन में ये भी ओरली होगा सॉल्व. द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी. व्हाट यू शुड डू, फर्स्ट मार्क डाउन कि किसमें इक्विवेलेंट निकालना है. ओके, तो उसके बाद एज यू कैन सी इन दोनों में निकालना है. ये दोनों है आपके सीरीज 6, ये 6 और ये 6 पैरेलल, वापस से 3, तो ये आ गया आपका 3, राइट? करेक्ट. ये 3 और ये 3 सीरीज, राइट? तो ये 3 और ये 3 सीरीज, मतलब ये पूरा आ गया 6, ये 6 और ये 3 पैरेलल में, तो इसका मतलब आर ए बी विल बी 6 into 3 upon 6 plus 3, 9, 1 जा 3 जा 1 जा 2 जा, है क्या ऑप्शन में 2 ओहम, ऑप्शन नंबर बी. So this is how you are supposed to solve this question. Next question is a joke again. Resistances of 6 ohm are connected in the manner as shown in the figure with a current of 0.5 ampere as shown in figure. Potential difference between P and Q is, देखो easy है, 6 6 6 6 by 3 parallel मतलब 2, 6 and 6 12, right? 12 and 6 in parallel, 12 into 6 upon 12 plus 6, 12 into 6 upon 12 plus 6, wait, 12 into 6 upon 18, 1 जा 3 जा 4 total, correct? So this total will give you 4, this total will give you 4. अब ये 4 और ये 2 सीरीज में, तो इक्विवेलेंट कितना आ गया आपका 6, तो रेजिस्टेंस बिटवीन पी क्यू इज टोटल 6 ओहम. देन फ्रॉम ओहम्स लॉ डेल्टा वी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पी पॉइंट एंड क्यू पॉइंट, पी एंड क्यू ही होगा क्योंकि करंट कहां से कहां जा रहा है, पी टू क्यू, मतलब पी इज एट हायर पोटेंशियल, इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस बिटवीन पी क्यू. करंट कितना है 0.5, रेजिस्टेंस कितना है 6 का हाफ कितना 3, तो 3 वोल्ट you will have potential difference between P and Q. So you will have this as the answer, 3 volt. Right? Next question. In Wheatstone's bridge, P is 9, Q is 11, R is 4 and S is 6. How much resistance must be put in parallel to the resistance S to balance the bridge? पहले आपको व्हीटस्टोन्स नेटवर्क ब्रिज पता होना चाहिए, व्हीटस्टोन्स नेटवर्क पता होना चाहिए. यू हैव इन द फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल, क्वाड्रिलैटरल के हर एक आर्म पे एक एक रेजिस्टेंस है. ओके, तो इट इज समथिंग लाइक दिस. गुड, तो यू विल हैव समथिंग लाइक दिस. तो लेट अस गिव सम नेम. ए, you can call this as B, you can call this as C and this as D. कभी भी किसी भी दो डायगोनली अपोजिट में आप बैटरी कनेक्ट करते हो थ्रू अ की प्लस माइनस ई, और बाकी के दो में आप गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते हो. इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है, R2 का अपोजिट R3 होता है और ये होता है R4. ओके, अगर नेटवर्क बैलेंस्ड है तो R1 by R2 इक्वल टू R3 by R4 होना चाहिए. आपको बोला है
P, Q, R and S. P, Q are not here, but here R and S. Right? देखो अब आपको तो आपके पास तो वैल्यूज भी दी हुई है. So let's also talk about values. So you have R1, R2, R3, R4. तो आपके पास ये वैल्यूज है now. Now, as you already know, R1 मतलब P, है ना? R1 मतलब P, R2 मतलब Q, P by Q कितना आया? 9/11. R3 मतलब R, R4 मतलब S, R by S कितना आया? 4/6. मतलब कितना? 2/3. इक्वल है क्या? नहीं है, मतलब बैलेंस नहीं है. बैलेंस करना है तो आपको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा पैरेलल में. ओके, राइट? वही बोला है हाउ मच रेजिस्टेंस यू नीड टू पुट. तो बाय द वे व्हाट आई विल डू इज इस पैरेलल को मैं बोल दूंगा x, और x पैरेलल में लगाने के बाद नेटवर्क बैलेंस हो जाएगा. नेटवर्क बैलेंस हो जाएगा. ओके, सो व्हाट हैपेंस इज नेटवर्क गेट्स बैलेंस्ड, राइट? तो नेटवर्क गेट्स बैलेंस्ड. नेटवर्क गेट्स बैलेंस मतलब अभी P by Q मतलब R1 by R2 इक्वल टू R by S मतलब R3 by R4. सिर्फ S की जगह पे डैश. क्यों डैश? क्योंकि मैंने S के साथ क्या लगाया है? X. ये था 9, ये था 11, ये था आपके पास 4, और ये आएगा पैरेलल ऑफ S एंड X मतलब SX अपॉन S प्लस X. करेक्ट? 9, 11, 4. This is S. What is value of S? दिया है ना 6, 6. Okay, 6 into X upon 6 plus X. 2 जा 3 जा. सॉल्व करो. This is 27X इक्वल टू मल्टीप्लाई करोगे तो 66 प्लस नहीं 2 भूलना नहीं. ये होता है नॉर्मली, गलती होती है. गुड. तो 22 into 6, 22 into 6, 22 into 5 is 110, 132. 132 और ये 22 x, 27x minus 22x, 5x equal to 132, 5x equal to 132, 5 20s is 100, 5 26 is 130. okay, so 26.4 option C. Done. okay, तो दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो ये आपको याद होना चाहिए कैसे सॉल्व करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 20 ओहम. 20 डिग्री पे 20 ओहम, 500 डिग्री पे 60 ओहम. तो कौन से टेम्परेचर पे 25 ओहम? तो वही R1 इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा T. ओके, करेक्ट. R1 इज 20 एट हाउ मच? 20 डिग्री पे, बराबर. तो 20 अल्फा. So that is what I told you. That is what I told you. पहला ही क्वेश्चन. हम जानबूझ के इनिशियल टेम्परेचर को 0 लेते हैं. That is what I told you. ओके, तो जानबूझ के लेना क्यों होता है? क्योंकि मुझे वो T2 माइनस T1 नहीं चाहिए वहां पे. तो T2 माइनस 0 मतलब फाइनल टेम्परेचर माइनस 0 मतलब फाइनल टेम्परेचर, ऐसा है, राइट? तो R2 इक्वल टू R0 1 प्लस अगेन अल्फा T2. यहाँ पे T1 था, यहाँ पे T2 है. R2 कितना बोला है आपको? 60 ओहम. कितने टेम्परेचर पे बोला है? 500, 500 अल्फा. क्या फाइंड करना है? व्हाट इज द रेजिस्टेंस एट, व्हाट इज द टेम्परेचर व्हेन रेजिस्टेंस 25. पहले तो इन दोनों को डिवाइड करो. इफ यू डिवाइड इक्वेशन 1 and 2, तो 60 by 20, 60 by 20, R0 कैंसल. 1 plus 500 अल्फा अपॉन 1 plus 20 अल्फा, 1 जा एंड 3 जा. तो 3 plus 60 अल्फा इक्वल टू 1 plus 500 अल्फा. ओके, तो ये आ जाएगा 3 minus 1 2. ओके, इक्वल टू 500 minus 60
440 मतलब अल्फा आ जाएगा 1/220 बराबर। ओके देन अल्फा मिल गया। आपको क्या बोला है, आपको बोला है कि 25 ओहम कितने टेम्परेचर पे आएगा, तो R3 इज इक्वल टू बराबर R0 1 प्लस अल्फा टी 3, ये कितना बोला है 25। क्या फाइंड करना है T3, बट प्रॉब्लम क्या है कि R0 नहीं पता, फिर अभी क्या R0 कैलकुलेट करेंगे, नहीं करना है R0, यू डोंट हैव टू कैलकुलेट R0। इक्वेशन 3, वापस इस 3 को दोनों में से किसी से भी डिवाइड कर दो, मैं 1 से करता हूँ। इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 1, 25/20 इक्वल टू R0 कैंसल, 1 प्लस अल्फा T3 अपॉन 1 प्लस 20 अल्फा, 4 जा 5 जा 5 प्लस 100 अल्फा इक्वल टू 4 प्लस 4 अल्फा T3 बराबर। गुड, solve this, 5 minus 4 1 and this goes there, so 1 equal to 4 alpha T3 minus 100 alpha, correct। so 1 equal to 4 alpha, I can take out common, T3 minus 25, okay, 1 equal to 4/220, T3 minus 25, 55, very good, 55, T3 minus 25, so T3 will be 55 plus 25, 80 degree Celsius. Look, you have option there. So this is how you are supposed to solve question. Okay, then next question, a current in a wire is given by the equation I equal to, अब पहली गलती क्वेश्चन में, current cannot be a function of distance, it is a function of sign, so 2t square minus 3t plus 1, the charge through cross section of wire in time t equal to 3 to 5 is, ये दूसरी गलती यहाँ पे, right, so there are two printing mistakes in this question, okay, तो बी अवेयर ऑफ दिस मिस्टेक्स, ये गलतियों पे ध्यान देना। तो यू हैव, आपके पास एक इक्वेशन है, यू हैव इक्वेशन ऑफ करंट, आपको क्या पूछा है, व्हाट इज चार्ज, सो क्रॉस सेक्शन, डू यू रिमेंबर आई इज डी क्यू बाय डी टी, तो डी क्यू इज आई डी टी, राइट, तो टोटल चार्ज Q इज इंटीग्रेशन ओवर dq, मतलब इट इज इंटीग्रेशन ओवर I dt, कहां से कहां तक, 3 से 5 सेकेंड तक, ओके गुड, तो दिस इज इक्वल टू 3 to 5, व्हाट इज I इज 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 1 dt, सो दिस इज इक्वल टू, पहला जब इंटीग्रल करूंगा तो दो कांस्टेंट है, दो आ जाएगा बाहर, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, आई एम पुटिंग शॉर्टकट्स नाउ, राइट, 2 विल बी आउटसाइड द इंटीग्रल, t स्क्वायर dt मतलब t क्यूब बाय 3 माइनस 3 आउटसाइड, t स्क्वायर बाय 2 प्लस t फ्रॉम 3 to 5, ओके, तो you have to just put values now, so this is equal to 2/3, t क्यूब मतलब अपर लिमिट 5 क्यूब माइनस लोअर लिमिट मतलब 3 क्यूब, देन माइनस 3/2 t स्क्वायर, अपर लिमिट इज 5 माइनस लोअर लिमिट इज 3, देन प्लस 5 माइनस 3, आप ऐसा भी कर सकते हो, पहले एक एक बार 5 डाल लो जीरो टर्म में माइनस, हाँ तो एक ही बात है, इट्स नॉट वेरी डिफरेंट, 5 क्यूब 125, 3 क्यूब इज 27 minus 3/2, 25 minus 9 plus 2, so this is 2/3, this is 98,
-3/2, this is 16 plus 2, 1 जा 8 जा 24 plus 2 -22, -24 plus 2 is -22, -22. ओके, ज्यादा सोचना नहीं, ये है 100 का 2/3 होता है 66, तो दिस इज 66 रफली, दिस इज 40 अप्रोक्सीमेटली 43.34, ये आ गया आपका टोटल चार्ज. गुड, राइट? जस्ट अ मिनट. Next question. A cylindrical rod is reformed to half of its original length, keeping volume constant. मतलब लेंथ हाफ कर दिया आपने, वॉल्यूम कांस्टेंट रखा है, लेंथ हाफ करोगे तो रेडियस बढ़ेगा, ऑफ कोर्स बढ़ेगा, राइट? तो इफ इट्स रेजिस्टेंस बिफोर द चेंज वाज R, then after the change is, basically you should remember R resistance is nothing but rho L by A. याद रखना, आपको जो इंफॉर्मेशन दी है, क्या इंफॉर्मेशन दी है? लेंथ चेंज किया है. डिड दे टेल यू एनीथिंग अबाउट रेडियस और एरिया? नो. तो इसका मतलब आई वांट टू गेट रिड ऑफ एरिया फ्रॉम हियर. तो ऐसा करो, इसको आप बोलो रो एल स्क्वायर बाय एल मल्टीप्लाई डिवाइड बाय एल, मतलब आर इक्वल टू रो एल स्क्वायर बाय वी. रो कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट, मतलब आर इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, तो R2 बाय R1 इक्वल टू L2 बाय L1 का स्क्वायर, राइट? तो R2 इक्वल टू L2 बाय L1. आपने लेंथ क्या किया? हाफ, मतलब L2 is L1 by 2, मतलब L2 by L1 is half. तो हाफ स्क्वायर इनटू ओरिजिनल रेजिस्टेंस वाज R, मतलब R by 4. ऑप्शन नंबर B. So this is what you have, right? Next question. Again a joke. I just told you. क्या पूछा है? A और B में कितना? मैंने अभी बताया R1, R2, R3. मैंने बताया ऊपर कैसे फाइंड करते हो. R1 plus R2 13 into R3 upon 13 plus 6 upon R1 plus R2 plus R3. What is R1 plus R2 plus R3? 19. So that is 19. This is 19. Correct? है ना? 3 plus 8 plus 6. 3 एक ये 5 है. Just a minute. 5, 6. Okay, 5. This is 5. So whatever it is, I'll keep it like this. मैं इसको डिस्टर्ब नहीं करूंगा. I'll just keep it like this. तो ऊपर का इतना रेजिस्टेंस है, फिर 4 और ये 5, ये है सीरीज में. तो then this one and this one they are in series. So you will say total resistance between A and B is 4 plus 5 plus 13 into 6, 13 into 6 78, 78 by 19. तो ये आ जाएगा 9 plus 78 by 19. 19 9 जा 19 10 जा करो, minus 19 कर लो, 171. ओके गुड. 171 में 78 ऐड करो. एक काम करो ना, 170 में 179 ऐड कर लो, क्या फर्क पड़ता है? 171 प्लस 79, अरे 250 होता है वो. इतना टाइम should not be taking that much of time. Roughly 250 by 19. You know what is 19 10 जा 119, 19 11 जा 209, 19 12 जा 228, 3 जा 2, 13 जा मतलब 247. Do you see something? 19 into 13 is 247. हमारा 249 था. 13 point. डन. मतलब अगर एग्जैक्ट की बात करोगे तो ये 249 था. एग्जैक्ट की बात करोगे तो मैं आपको अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन बता रहा हूं यहाँ पे. अगला क्वेश्चन. A rod of certain metal is 1 meter long and 0.6 centimeter in diameter. You have a rod of certain metal. So you have a rod of certain metal, right? जिसका लेंथ आपको दिया है 1.
लेंथ इज 1 मीटर एंड डायामीटर इज 0.6, मतलब रेडियस विल बी 0.3 सेंटीमीटर ऑफ कोर्स, मतलब 3 into 10 power minus 3 meter. Okay, a disc of the same metal is 1 mm thick. तो by the way you should know resistance of rod, मैं इसको R1 बोलता हूँ, इक्वल टू रो L1 by A1, बराबर. तो दिस इज रो, इसको R1 बोल देते हैं, L1 by R1 स्क्वायर, राइट. और आपको आगे बोला है कि यहाँ पे एक डिस्क है जो सेम मेटल का है, सेम मेटल का है. तो सेम मेटल का अगर डिस्क है आपके पास, then so you may have a disc of the same metal. This is a disc of the same metal. सिर्फ यहाँ पे आपको थोड़ा सा थिकनेस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दिया होगा. 1 mm thick, तो the thickness is 1 mm. The thickness is 1 mm. So this is 1 mm thick, right? So and diameter 2 centimeter. Diameter 2 centimeter मतलब रेडियस कितना? 1 centimeter. तो R is 1 centimeter. R2 is 1 centimeter, मतलब कितना? 10 power minus 2 मीटर. ये thickness will become length equal to कितना बोला है? 1 mm, मतलब 10 power minus 3. So this is 10 power minus 3. Okay, sorry for this, minus 3 meter. Anyways, what is the resistance between circular faces? ये ऊपर और नीचे इन दो फेसेस में कितना रेजिस्टेंस? तो R2 is rho L2. L2 is thickness upon pi R2 square, बराबर. तो क्या करोगे? इसके बाद डिवाइड कर दो. R1 दिया है क्या R1? Yes. So R2 by R1 equal to rho L2 by pi R2 square upon rho L1 by pi R1 square. Rho pi गया, मतलब this is L2 by L1 into R1 by R2 का square, बराबर. तो R2 equal to L2 by L1 R1 by R2 square times of R1, but L2 by L1, L2 was 10 power minus 3 and L1 was 1 meter. R1 is 3 into 10 power minus 3 and R2 is 10 power minus 2 square. R1 is 3 into 10 power minus 3. करो इसको सॉल्व. 10 पावर माइनस 3, ये 10 पावर माइनस 2 ऊपर जाके 10 पावर प्लस 2 होगा, मतलब 3 into 10 पावर माइनस 1, मतलब 9 into 10 पावर माइनस 2 into 3 into 10 पावर माइनस 3. 27 8, 27 माइनस 8 मतलब 2.7 10 पावर माइनस 7. वैसे जरूरत नहीं थी क्योंकि यू कैन सी 2 and 10 only at the one place. तो क्वेश्चन खत्म. ओके, गुड. देन next question, length of a hollow tube is 5 meter. Its outer diameter is 10 centimeter and thickness of its wall is 5 mm. If the resistivity of the material of the tube is 1.7 into 10 power minus 8 ohm meter, then resistance of the tube will be. The question is good. You can actually solve this question quite easily. Okay, so just a minute. You can solve this question pretty easily. Give me a minute. Okay, anyways. So, all right. Just a minute. I'm trying something out, so don't worry. I am little crazy to do all these things, so don't worry at all. नहीं हो रहा है. लास्ट ट्राई हुआ तो ठीक, नहीं तो आई विल से ओके आई विल ड्रॉ इट बाय हैंड. नहीं हुआ, गुड. सो डजंट मैटर. सॉरी फॉर दिस. यू हैव अ hollow tube. ओके, तो बाय द वे यू नीड टू पे अटेंशन हियर नाउ. ये आपके पास एक hollow tube है जो 5 मीटर लॉन्ग है. So you have a hollow tube which is
5 meter long, something like this, 5 meter long. Okay, then आगे आपको बोला है in this case what else is said is, so it is something like this, समझ लेना आप. Okay, pardon me for my incorrect drawing, छोड़ो. Then what they are telling you is, इसका जो outer diameter है, outer diameter कितना, 10 सेंटीमीटर, राइट. outer diameter 10 सेंटीमीटर मतलब outer radius मतलब this much, ये इतना. ओके, हाउ मच इज दिस, दिस इज 5 सेंटीमीटर, दिस इज 5 सेंटीमीटर, यू हैव दिस एज 5 सेंटीमीटर. आउटर रेडियस इज 5 सेंटीमीटर. थिकनेस कितना बोला है, 5 mm, मतलब ये जो थिकनेस है इस वॉल का, दिस इज 5 mm. 5 mm इज 0.5 सेंटीमीटर, राइट. दिस इज 5 mm थिकनेस, मतलब इनर जो रेडियस आएगा 4.5, तो इनर रेडियस आर इनर विल बी 4.5 सेंटीमीटर. ओके, रेजिस्टिविटी आपको दिया है, आपको रेजिस्टेंस पूछा है, तो इजी क्वेश्चन है. डू यू नो रेजिस्टेंस आर इज रो एल बाई ए, राइट. रेजिस्टेंस में रो की वैल्यू 1.7 into 10 power minus 8, लेंथ कितना 5 मीटर. एरिया important, area is the area occupied by the material, not by the hollow region, so that is pi r outer square minus r inner square. 17 into 5, 170 का half, 85, 8.5, this is 8.5 into 10 power minus 8 upon pi. आउटर 5 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करो या तो एक काम करो, ज्यादा अगर टेंशन आता है ना तो एक काम करना, 5 माइनस 4.5 स्क्वायर करना है आपको. 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25, 4.5 का स्क्वायर 12. देखो 4.5 का स्क्वायर कैसे करते हो, 45 का स्क्वायर कैसे करते हो, 20.25 आएगा वो. हाउ डू यू फाइंड आउट स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंडिंग विथ 5? हाँ, राइट में 25, 4 प्लस 1 मतलब 5, 4 into 5. ओके, जिनको नहीं पता उनके लिए, अगर आपको 45 का स्क्वायर करना है तो 5 का स्क्वायर लिख लो 4 और उसका अगला नंबर 5 मल्टीप्लाई कर दो. 4.5 था तो 20.25 आएगा, राइट. 4.5 का स्क्वायर मतलब कितना, 20.25. So here you will have this as 20.25 नीचे, so this will be minus 20.25, correct, right. लेकिन remember this is in centimeter square, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10 power minus 4. good, right. Then now 8.5 into 10 power minus 8 और नीचे minus 4 था, right. pi into this is 4.75. मैं रफली बता रहा हूं आपको आंसर, रफ approximate. okay, now how to do this, how to solve this. देखो क्या है, ऊपर 8.5 है, नीचे 4.75 है. लुक हियर, ऊपर 8.5 है, नीचे 4.75 है. अगर नीचे 4.25 होता तो 1 जा एंड 2 जा. नीचे का नंबर बढ़ाना मतलब ऊपर का नंबर कम करना, राइट, करेक्ट. तो मैं अप्रोक्सीमेटली भी मान लो तो 1.8 ले सकते हैं, नीचे पाई को 3.14 ले सकते हैं. 10 पावर माइनस 4 था, 10 पावर माइनस 4 को -5 करके ये पॉइंट हटा सकते हैं, करेक्ट. 1 एंड
Okay, so you have roughly 5.6 into 10 power minus 5. तो approximate answers आपको ऐसे find करने होते हैं. This is a way of doing calculations, right? So that's it for today. We will continue with more questions in the next session.